Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. First of all, I wish you all a very happy 74th Republic Day on behalf of Rouse Academy for Competitive Exams. 26 जनवरी 1950 वही दिन है जिस दिन भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था पूर्ण स्वराज और कंप्लीट सेल्फ रूल इन इट्स लाहौर सेशन. So it was declared by the then Congress party that 26 January 1930 will be celebrated as the Independence Day by the Indians. But Pandit Jawaharlal Nehru, who was the president of Congress party, hosted the tricolor on the bank of River Ravi in Lahore, and this day was celebrated as Purna Swaraj Day for the next 17th year. And that is why, when the Constitution of India was adopted on 26 November 1949, many consider it necessary to celebrate and enforce the document on a day associated with national pride, which was earlier 26th January. So this day is very important because on this particular day इंडिया ने फाइनली जो लास्ट रेलिक था ऑन दी ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम उसको यहाँ पर त्याग दिया और अपनाया एक लोकतांत्रिक गणराज्य. Also, we should remember the preamble on this very day because the first constitution to start with the preamble was the American Constitution, but the Indian Constitution also starts with one. And our preamble is basically the introduction or preface to the Constitution because it sums up the essence of the Constitution. Along with that, N.A. Palkhiwala, a constitution expert, also refers the preamble as the identity card of the constitution. So, on the ideas of Pandit Jawaharlal Nehru on his objective resolution that he moved and was adopted by the Constitution Assembly. The preamble has been amended in 1976 by the 42nd Amendment, which added words socialist, secular, and integrity to it. और finally हमारे सामने आया हमारा preamble, which gives four components. First is sources of authority of the Constitution because it mentioned that the Constitution derives its power from the people of India. Second, nature of the Indian state because it says India is a sovereign, socialist, secular, democratic, and republican state. Third, it talks about the objective of the Constitution because it also says justice, liberty, equality, and fraternity. And finally, the Constitution date of adoption, which is none other but 26 November 1949. With all this information, let's move further. So in our previous video, I have asked few questions. So let's see their solution first. And the first question was very important because it was for mains GS paper 2. So पहला क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है इन द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट डिस्कस द नीड फॉर अ ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी. देखिए आंसर्स में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर उन्हें मैंने मेंशन किया है तो इनको एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो WHO ने डिफाइन किया है पैंडमिक अकर होता है व्हेन अ न्यू डिसीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी स्प्रेड्स अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड इवन एक्सपेक्टेशन. लेकिन एपिडेमिक वहीं पर वो कंडीशन होती है विच अकर्स व्हेन अ आउटब्रेक अकर्स अमंग अ पॉपुलेशन और रीजन और कंपैरेटिवली टू द पैंडमिक इट इज़ लेस सीवियर और एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया में ये स्प्रेड होता है. पैंडमिक के एग्जाम्पल अगर हम लें तो इट वॉज स्पेनिश फ्लू देन द कोविड. अगेन एपिडेमिक की बात करें तो हम पोलियो या येलो फीवर इसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं. सो अगर हम कोविड-19 की बात करें तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 18 मिलियन, ठीक है, 18 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड कोविड-19 की वजह से यहाँ पर इनकी डेथ हो गई. अकॉर्डिंग टू वेरियस क्रेडिबल एस्टिमेट्स अ स्केल ऑफ लॉस नॉट सीन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. In fact, over 120 million people pushed into extreme poverty. Massive global recession आ गया. No single government in the world or the institution
has able been to address this emergency single handedly, जिसने लोग हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज की डेट में हम किसी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हैं या नहीं। सो ड्यूरिंग द कोविड-19 ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड वाइड आ गई जिसने एक हेल्थ इनइक्विटी को क्रिएट कर दिया। अगर हम बात करें तो वो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे, बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल इन लो एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज, वाइल द हाई इनकम इकोनॉमीज सारे लोग सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट से पीछे आ गए थे। वहीं अगर हम बात करें एक दूसरी इनक्वालिटी हमें देखने मिली, मोनोपोलीज हेल्ड बाय द फार्मा मेजर्स, जैसे फाइजर, BioNTech, Moderna. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, even as fewer of their vaccines reached people in low income countries. Result, जो लो इनकम कंट्रीज थी वो मजबूर हो गई कि कोविड को उसी तरीके से टैकल करें जिस तरीके से वो कर पा रही हैं विद द लिमिटेड रिसोर्स। बट इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इंडिया इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर बिकॉज इट डेवलप्ड Covishield and Covaxin, where Covaxin was the India's first indigenous vaccine as well. वहीं अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, दैट वाज वैक्सीनेशन। एक हायर इनकम कंट्रीज़ में आफ्टर कोविड पैंडमिक जो भी डेटाज आए उसमें से सिर्फ 18% लोग ऐसे थे जो इम्यूनाइज किए गए। वहीं अगर हम लोअर इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो देयर वर ओनली 3% पीपल हु वर immunized or who gave vaccination. So this is something again very much worried that people and on a global level leader should think about. Next is persecution, 6 to 8 weeks. After the FISIC declaration, countries expect for Asia did not take the requisite precautions. So this was also something that was very alarming कि आपको एक precaution लेने के लिए बोल दिया गया था, but still what countries were doing, because there was no global leader, there was no global pandemic treaty who can look upon on each and every single point. सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज़ पैंडेमिक ट्रीटी। देखिए, जब हम पैंडेमिक ट्रीटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इन दिसंबर 2021 the World Health Assembly agreed to start a global process to draft the pandemic treaty. The need for an update set of rules was felt after the COVID-19 pandemic exposed to the shortcoming of global health system that we have already discussed in this point. So, the World Health Organization established an intergovernmental negotiation body, which was also known as IND, to draft and negotiate the contents of the pandemic treaty in compliance with the Article 19 that we will discuss of the WHO Constitution. So this health assembly adopted a decision और इसको टाइटल दिया गया द वर्ल्ड टुगेदर। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे, द वर्ल्ड टुगेदर, जो कि सेकंड स्पेशल सेशन था सिंस इसको जब से फाउंड किया गया था इन 1948। सो अंडर दिस डिसीजन द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश दिस INB, जिसका काम था एक ड्राफ्ट करना, एक नेगोशिएबल कंटेंट को प्रिपेयर करना फॉर द पैंडेमिक ट्रीटी, जिसका काम होगा वो कंप्लाइंस करेगी आर्टिकल 19 ऑफ द WHO कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, what is article 19 of the WHO constitution? So here article 19 of the WHO constitution gives the World Health Assembly the authority to adopt convention or agreement on matter of health. A only in this only two-third majority is needed to adopt such convention or agreement. So the WHO Framework Convention on Tobacco Control was set up under Article 19, जो कि 2005 में हमारे सामने आया था। So आर्टिकल 19 WHO को वो राइट देता है, वो अथॉरिटी देता है कि सिर्फ 2/3 मेजोरिटी से एक ऐसा एग्रीमेंट लेकर आ सकते हैं, एक ऐसा कन्वेंशन लेकर आ सकते हैं जो कि हेल्थ मैटर से रिलेटेड हो। So after reading all these points, now the question arises, what is the existing framework for global health cooperation? So अगर हम बात करें IHR, which is, I am writing it here, IHR, which stands for International Health Regulation, which was adopted in 1969 और इसको लास्ट रिवाइज ही किया गया था सिर्फ 2005 में, जो मैंने आपको बताया टोबैको के टाइम पर।
is an instrument of international law that is legally binding on 196 countries. इनफैक्ट इंडिया भी इसका मेंबर है, जिसका काम है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को करना, प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना, कंट्रोल करना और वो सारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड करना जो किसी भी इस तरीके की डिसीज़ या इंटरनेशनल स्प्रेड किसी भी डिसीज़ के होने पर लिए जा सकते हैं। साथ ही ये प्रोवाइड करता है एक ओवर रीचिंग लीगल फ्रेमवर्क को जो डिफाइन करता है कंट्रीज के राइट एंड ऑब्लिगेशन इन हैंडलिंग पब्लिक हेल्थ इवेंट्स एंड इमरजेंसीज। अब आप देखिए ये कंटेक्स्ट हम कहाँ से समझ सकते हैं, कोविड-19। इसीलिए मैंने इनिशियली आपको बोला कोविड-19 को डिस्कस करिए, उसके शॉर्ट कमिंग्स को डिस्कस करिए, बिकॉज ओनली देन आप बता पाएंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की। सो जब हम बात कर रहे थे IHR की, तो इसका काम था ओवर रीच करना लीगल फ्रेमवर्क को जो डिफाइन करता है कंट्रीज के राइट, ऑब्लिगेशन, जो भी पब्लिक हेल्थ इवेंट है या इमरजेंसी हुई है उससे रिलेटेड उसको क्या एक्शंस लेने चाहिए, साथ ही क्रॉस बॉर्डर पोटेंशियल क्या हो सकते हैं उसको भी ध्यान में रखना इनका काम है। सो यही IHR है जो एम्पावर करता है हमारे WHO को टू एक्ट ऑन द मेन ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम। This regulation also outlined the criteria to determine whether or not a particular event constitute as physic. So, after reading all this, इसीलिए हमें ज़रूरत लगी कि हमें क्या होना चाहिए, एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी होना ज़रूरी है। सो नीड क्या क्या हो सकती है हमारे पास, पहला एक वाइड स्प्रेड हेल्थ इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए, दूसरा जो भी रिस्क और जो दूसरे हेल्थ क्राइसिस हैं जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जिसे हम PHEIC भी बोल देते हैं, इसका मेजरमेंट करने के लिए, जो भी सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको दूर करने के लिए, जो मोनोपोलीज फार्मा कंपनीज करके रखती हैं उसको दूर करने के लिए, साथ ही जो पुअर वैक्सीनेशन है लोअर इनकम कंट्रीज में पहुंचा दी जाती हैं उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जिस प्रिकॉशन को कोविड-19 के टाइम पर इग्नोर किया गया था, ऐसी कोई भी कंडीशन दोबारा ना हो, इसको देखने के लिए हमें एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की आवश्यकता है। सो कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, और ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन WHO ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो एक नई इंटरनेशनल ट्रीटी बनाने के लिए यहाँ काम करेंगे जिसका एम होगा टू इंश्योर बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड इक्विटेबल रिस्पॉन्स फॉर फ्यूचर पैंडेमिक। साथ ही एडवांस करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सॉलिडारिटी एंड हेल्थ फॉर ऑल। साथ ही ये ट्रीटी इस बात पर भी ध्यान देगा कि जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन बॉडी है जो स्टेट करती है WHO को पावर प्रोवाइड करती है अंडर आर्टिकल 19, वो इस पूरे प्रोसेस को कंक्लूड करेगी बाय 2024 और वर्ल्ड के पास एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी यहाँ पर आ चुकी होगी। चलिए, तो इन पॉइंट्स को बेस रखते हुए अब आप चाहें तो अपना आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ राउज अकेडमी पर बता सकते हैं। साथ ही आप दूसरों के आंसर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी मेंस के लिए अपने आंसर्स को प्रिपेयर करने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था दैट वाज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, एंड करेक्ट आंसर इज 25 जनवरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देख लेते हैं आज आर्टिकल में क्या है। देखिए, ये जो पहला न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है एक रेयर और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 92 क्लोजली लोकेटेड डायनासोर के नेस्ट और 256 फॉसिलिफाइड एग्स, जो कि हमारा एक हेर्बीवोरस है टाइटेनोसॉरस, जिसको माना जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन डायनासोर, उसके अंडे यहाँ पर लगभग 256 से भी ज़्यादा फॉसिलिफाइड एग्स मिले हैं इन 92 क्लोजली लोकेटेड डायनासोर नेस्ट। सो पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इनको आइडेंटिफाई किया है धार डिस्ट्रिक्ट के आसपास नर्मदा वैली में, और किस डायनासोर के अंडे हैं, ये टाइटेनोसॉरस। देखिए, जिसने भी जुरासिक पार्क देखी होगी उसको बहुत अच्छे से पता होगा, एक लंबी गर्दन लंबी पूंछ वाला एक सबसे जाइंट सा जो डायनासोर होता है दैट वाज टाइटेनोसॉरस। हालांकि इस तरीके के जो डायनासोर के एग्स हैं और नेस्ट हैं वो पहले भी मिल चुकी हैं, बट ये जो रिसेंट फाइंडिंग है इसने एक
पॉसिबिलिटी को रेज कर दिया है कि नर्मदा वैली शायद एक फर्टाइल हैचरी लोकेशन हुआ करती थी डायनासोर्स के लिए। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आप ऑलिव रिडले टर्टल्स को देखते हैं, ये उड़ीसा के कोस्ट या आसपास के एरिया में आते हैं, क्योंकि वो उनको एग हैच करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इकोलॉजी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई दे केम हियर, अंडे देते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस ट्रैवल कर जाते हैं। इन अ सिमिलर वे ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ लगाई जा रही हैं पैलेंटोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये जो नर्मदा वैली वाला एरिया है, दैट माइट बी वेरी फर्टाइल फॉर द हैचिंग लोकेशन। ठीक है, सो यहाँ पर पैलेंटोलॉजिस्ट की एक टीम है जिन्होंने रिसर्च किया है इन बाग एंड कुक्षी एरिया ऑफ धार, और 2017 से 2020 की इन स्टडीज़ में पता चला है कि धार डिस्ट्रिक्ट के जो अंडे हमें मिले हैं वो 66 मिलियन साल से भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। देखिए, इन पूरी स्टडी की दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, ये ओवम इन ओवू है, ठीक है, दैट मीन्स एग्स इनसाइड द अदर एग। जैसे एक एग के अंडे अंदर दूसरा एग, दूसरा इनकी क्वालिटी कैसी देखी गई है, एक एग में लगभग 2 यॉक्स देखने मिलेंगे, जैसे जैसे येलो पार्ट बोलते हैं, जैसे एक बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, एग के अंदर। सो शेल के अंदर 2 एग्स भी यहाँ पर 2 यॉक्स भी देखने मिले हैं, जो कि फीचर्स होते हैं बर्ड्स के। तो शायद इनकी एक क्लोज कनेक्टिविटी रही है किसी उड़ने वाले जानवर के साथ, या कुछ इस तरीके की स्टडीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। सो अभी इन पर स्टडी चल रही है। जस्ट कीप दीज फ्यू थिंग इन माइंड कि कहाँ से लोकेशन मिली है, 256 फॉलिसिफाइड एग्स मिले हैं और इनकी क्या खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है जल जीवन मिशन की, जिसने प्रोवाइड किया है टैप वाटर टू 11 करोड़ हाउसेस। सो रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज़ किया है, जिसके हिसाब से इन्होंने 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर पहुंचाया है विद दिस स्कीम। सो डेटा जो यहाँ पर आया है वो सजेस्ट कर रहा है दैट 56% ऑफ द टारगेटेड 19.3 करोड़ हाउस होल्ड्स दैट हैड बीन कवर्ड इन September 22। अगर हम इसी डेटा की बात करें तो इट वॉज 53%, जो आज की डेट में हो चुका है 56%। तो क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना ज़रूरी है? जी नहीं, आपको जल जीवन मिशन के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। सो अगर हम बात करें, इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसका उद्देश्य था सप्लाई करना लगभग 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं यहाँ बोल रही हूँ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे to every rural household through functional household tap connection, जिसे FHTC भी बोला जाता है, by 2024। ठीक है, सो यहाँ पर बात की जाए तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसका एम था ये इंश्योर करना कि एक फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम जो है और वाटर कनेक्शन है, वाटर की जो क्वालिटी है उसे मॉनिटरिंग करना, टेस्ट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए लगभग 55 लीटर पानी पर डे पर पर्सन हर रूरल हाउस होल्ड में पहुंचाना। साथ ही ये इसका काम ये इंश्योर करना भी था कि वाटर का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वाटर रिसोर्सेज के लिए क्या ऑगमेंटेशंस किए जाने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होगा। अलॉन्ग विद दैट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट भी आया था, दैट वाज ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और उसका रीयूज़ कैसा किया जाए। ठीक है, सो ये तो हो गया इसकी एम। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो जेजेएम फोकस करता था इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर। ठीक है, जहाँ पर लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ में इन्होंने फोकस किया कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच हमें अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके के जो की एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं मिशन के, उनका काम ही क्या है, कम्युनिटी को यहाँ पे सजग बनाना, एजुकेट करना, ताकि वो पानी का सदुपयोग यहाँ पे करना सीखें, ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट करना सीखें, और जो भी एम्स जेजेएम में निर्धारित किए गए थे। देखिए, इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं वो आपकी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, मतलब हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और क्या अचीवमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू बी इनवाइटेड फॉर एससीओ समिट। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एससीओ की एक यहाँ पर एससीओ का समिट होने वाला है, जिसके नतीजन जो बिलावल हैं, अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो,
जो कि पाकिस्तान से हैं, और हम क्वीन गैंग की बात करें, इनको इनवाइट किया गया है इन मिनिस्टीरियल मीटिंग में बिकॉज दिस इज़ अ हाई चांस that they will bring Pakistani leadership to India after a decade and also Chinese and Russian leadership in a same year. So देखना होगा ये जो SCO की मीटिंग है that is likely to be held in Goa, ठीक है, मई के आसपास ये मीटिंग आपको देखने मिलेगी और ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2। सो यहाँ पर इनवाइट किया गया है, इनविटेशन भेजे जा चुके हैं, लेट्स सी कि क्या आउटकम हमें देखने को मिलेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। SCO एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेन करता है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। देखिए इसको क्रिएट किया गया था 2001 में और SCO का जो चार्टर है वो साइन हुआ था 2002 और ये इन्फोर्स हुआ था 2003। चलिए इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। सो SCO के बनने के पहले देखिए क्या था, 2001 तक की सिचुएशन थी जहां कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान एक ग्रुप फॉर्म किए हुए थे जिसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 में 1996 में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले और ये एक बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स के रूप में निकला। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर 2001 में, ठीक है, इन्होंने उज़्बेकिस्तान को यहाँ पर एंट्री दे दी और उज़्बेकिस्तान के आने के बाद ये शंघाई 6 नहीं बना, इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया एंड केप्ट इट एज अ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहीं 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की एक साथ इसमें एंट्री हो जाएगी और लास्टली 17 सितंबर 2021 इसका लेटेस्ट मेंबर यहाँ पर आ जाएगा विच वॉज ईरान। तो अगर हम बात करें आज की डेट में SCO के मेंबर कौन कौन से हैं, सो 2000 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। बाद में मैंने बोला उज़्बेकिस्तान इसमें जुड़ा, इंडिया और पाकिस्तान इसमें आया एंड ईरान लेटेस्ट इसका एडिशन बना। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए इनका काम है स्ट्रेंथनिंग करना, एक म्यूचुअल ट्रस्ट को यहाँ पर डेवलप करना अमंग द मेंबर स्टेट, प्रमोट करना इफेक्टिव कोऑपरेशन को इन पॉलिसीज, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, वहीं इन्हांस करना टाइज इन द एजुकेशन सेक्टर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट्सेट्रा, इस्टेब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को। सो शंघाई कोऑपरेशन, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ, एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड मैथोलॉजिकल मटेरियल्स के उसमें भी काम करता है, साइंटिफिक जो भी पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च वर्क्स होते हैं उनको एक्सचेंज करने का काम करता है, ये प्रमोट करता है जॉइंट इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स को। साथ ही SCO की काउंसिल है विच इज़ नोन एज दी SCO यूथ काउंसिल। ये यूथ काउंसिल यहाँ पर क्रिएट की गई थी 2009 में और इसका इनिशिएटिव था यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि जितने भी SCO के मेंबर स्टेट्स हैं वो यहाँ पर यूथ काउंसिल की मदद से एक नया पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rao's Academy for competitive exams. अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ब्रांच भोपाल एवं इंदौर में संपर्क कर सकते हैं फॉर मोर सच डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहां बात की जा रही है अर्थ का जो इनर कोर है। एक रिसेंट स्टडी ने बताया है कि इसका जो मूवमेंट है, इसका जो रोटेशन स्पीड है वो यहाँ पर स्लो हो चुका है। सो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं स्टडी को पूरी तरीके से। बात की जा रही है अर्थ का जो इनर कोर है वो एक हॉट आयरन बॉल है। जैसे हमें पता है अर्थ के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको कोर दिख जाएगा, यहाँ आपको मेंटल दिख जाएगा जिसमें आपको एक लेयर एस्थेनोस्फेयर की दिख जाती है और फाइनली आ जाता है क्रस्ट। जैसा हमें पता है अर्थ की ये जो अलग अलग लेयर है इनका कॉम्पोजिशन अलग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दिखने मिल जाएंगे। ये हमें विस्कस कंडीशन में दिख जाता है, सेमी मोल्टेड कंडीशन में दिख जाता है। सेम गोज विद द मेंटल स्टेट। देन वी कम टू द कोर। सो कोर हमें कैसा दिख जाता है, सॉलिड स्टेट में।
और सॉलिड स्टेट की भी बात करते हैं तो वो हमें इनर कोर का दिखता है, जबकि आउटर कोर हमारा कैसा होता है, इज इन दी लिक्विड स्टेट। चलिए सो वापस आ जाते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल बात कर रहा है कि जो अर्थ का इनर कोर है ये एक हॉट आयरन बॉल की तरह है, जिसका साइज जो है वो प्लूटो की तरह है। इट हैज़ स्टॉप्ड स्पिनिंग फास्टर देन द प्लैनेट सरफेस। ठीक है, और अब ये जो रोटेशन कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रोटेट कर रहा है, जो भी रिसेंट स्टडी हुई है इन्होंने बताया। सो बात की जा रही है ये रफली 5000 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस we live on, and this planet within the planet can spin independently because it floats on the liquid metal outer core, जो कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया। अब ये जो नई रिसर्च हुई है इन्होंने इस बात को बोला है कि इसके रोटेशन की वजह से जो सेस्मिक वेव्स हैं या जो रिपीटेटिंग ऑफ अर्थक्वेक्स हैं लास्ट फ्यू 6 डिकेड्स में, ये हमें बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसी तरीके से एक बार और स्टडी आई थी कि जो अर्थ का इनर कोर है इसने ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी रोटेट होने की इन अर्ली 1970s, बट इट हैड बीन स्लोइंग डाउन बिफोर कमिंग इन सिंक विद अर्थ्स रोटेशन अराउंड 2009। सो हुआ क्या, 1970s में जब इसकी गति तेज हो गई थी, और यहाँ से 2009 का टाइम वो था कि जब इसे अर्थ की स्पीड के साथ सिंक करना था, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने की जगह हो क्या गया है, ये अर्थ ज़्यादा जल्दी रोटेट कर रही है और जो इसका इनर कोर है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही स्लो रोटेट कर रहा है। सो यू शुड जस्ट कीप दिस इंटायर आर्टिकल इन योर माइंड, बिकॉज इससे रिलेटेड ये देखिए इंपॉर्टेंट है पहले तो जीएस पेपर 1 के लिए, और इससे रिलेटेड जो भी नए आर्टिकल्स हमारे सामने आते हैं हम इसको बेस बनाकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज फॉर द साइंटिफिक इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज के एडिटोरियल में बात की जा रही है जो हमारी सबमरीन्स लगातार न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी है, इंडिया अब बहुत ज़ोरों शोरों से तैयार हो गया है कि वो इसे अडॉप्ट कर ले। सो इस आर्टिकल को डेप्थ में समझने से पहले हमें जानना होगा कि इंडिया के पास जो सबमरीन सिस्टम है वो कितने टाइप का है। सो इंडिया के पास 3 तरीके के सबमरीन सिस्टम हमें देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज SSK, अनदर वन इज SSN एंड द लास्ट इज SSBN। देखिए जब हम SSSK की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, इन्हें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये डीजल इंजन से मूव करती हैं और इसी वजह से इन्हें बार बार क्या ज़रूरत पड़ती है, एयर और फ्यूल की आवश्यकता होती है। रिजल्ट, इनको हर बार हर थोड़े समय में सरफेस पर आना पड़ेगा, और इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रोन हो जाती है कि इन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। वहीं अगर हम SSN क्लास सबमरीन्स की बात करें तो इनका नाम है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। SSN जब हम बात करते हैं तो दे कैन स्टे एंड ऑपरेट अंडर वाटर, लगभग अनआइडेंटिफाइड तरीके से यहाँ पर रह सकती हैं। देयर एंड्योरेंस इज लिमिटेड ओनली बाय फूड सप्लाईज फॉर द क्रू, बट दे ऑल्सो इक्विप्ड विद द रेंज ऑफ टैक्टिकल वेपन्स जैसे टॉर्पेडोज, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल एट्सेट्रा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, तो ये इन्हें चलता फिरता स्लो बॉम्बर भी बोला जाता है। एंड स्टेडी लॉन्च प्लेटफॉर्म इनके ऊपर होता है कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन को यहाँ से छोड़ दिया जाए। ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास एग्जाम्पल है द अरिहंत। ठीक है, सो अरिहंत SSBN का ही एक पार्ट है। अब देखिए आर्टिकल की शुरुआत हुई अगेन प्रोजेक्ट 75 से। सिंस वी हैव डिस्कस्ड दिस इट मल्टीपल टाइम्स सो आई एम गोना स्किप इट फॉर नाउ। देखिए प्रोजेक्ट 75 के अंदर क्या हुआ है, क्लास ऑफ मरीन प्रोडक्शन जो हमारी है, हमारी जो कैलवेरी क्लास है, स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स है वो इंडिया को मिल चुकी है, और जो 5th अभी इंडिया को मिली है दैट इज INS वगीर। ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली 23 जनवरी के न्यूज़ आर्टिकल में हमने प्रॉपरली इसे डिस्कस भी किया था, और इस तरीके की 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडिया को मिलने वाली हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। वी आर डेवलपिंग दिस सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है आर्टिकल में कि एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम की यहाँ पर ज़रूरत होती है। रिजल्ट क्या है, देखिए बार बार
हम क्या नहीं कर सकते, हम डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो प्रोजेक्ट 75 की सबसे पहले यहाँ तारीफ की गई है कि प्रोजेक्ट 75 ने क्लियर कर दिया है इंडिया के लिए वो रास्ता, इंडियन नेवी के लिए वो रास्ता, जहाँ वो इंडिजीनियसली डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, और जिसका रिजल्ट ये हमारी 6 सबमरीन्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, देखिए ये जो पूरा सेक्शन है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट 75, बट दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बात की जा रही है बैटरी टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है जो लिथियम आयन बैटरीज हैं आर बेटर देन द एआईपी। एआईपी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शंस। देखिए, इस डिबेट को समझने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर एआईपीज होते क्या हैं। जब हम एआईपी की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी होती है फॉर कन्वेंशनल एंड नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। ठीक है, सबमरीन्स बेसिकली देखिए एसेंशियली दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं आपकी कन्वेंशनल जो हमने डिस्कस किया, और दूसरी होती हैं आपकी न्यूक्लियर। जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन की बात करती हैं, जो एसएसएन क्लास हमने देखी, और इनको रिक्वायर होता है बार बार सरफेस पर आना। वहीं अगर इनमें फिट कर दिया जाता है एआईपी सिस्टम, द सबमरीन विल नीड टू टेक इन ऑक्सीजन ओनली वंस इन अ वीक। तो होगा क्या, एआईपी टेक्नोलॉजी की मदद से ये सबमरीन्स को सिर्फ एक ही बार सरफेस पर आना पड़ेगा फॉर इट्स नीड। सो इंडिजीनियसली डेवलप्ड एआईपी जो कि की मिशन होते हैं नेवल मटेरियल्स में, रिसर्च लैबोरेटरी में, उनको यहाँ पर बात की जा रही है कि ये डीआरडीओ के भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम की, सो फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम एक इलेक्ट्रोलाइट्स फ्यूल सेल रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है बाय कंबाइनिंग, देखिए याद रखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक एनर्जी रिलीज करता है विद ओनली वाटर एज द वेस्ट प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या, मरीन पॉल्यूशन भी यहाँ नहीं होने वाला। दूसरी बात की जा रही है, दीज सेल्स आर हाईली एफिशिएंट, और इनको किसी भी तरीके के मूविंग पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। रिजल्टेड इनटू, ना ये खटपट खटपट की आवाज़ करते हैं, और इनमें से कोई भी एकोस्टिक एमिशन साउंड भी नहीं आता। ध्यान से समझिए, ये डिफरेंस ही हमें बताएंगे कि ये लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी जिस पर इंडियन गवर्नमेंट इतना एम्फोसाइज कर रही है, उसके ऑपोजिट जाके जो राइटर है उनका बोलना है कि जो एआईपी सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है। सो इसके एडवांटेजेस को हमने समझ लिया। एआईपी फोर्स करता है, फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है लिथैनिटी पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए, ये एनहांस कर देता है सबमरीन्स की एंड्योरेंस को और बोट के सेवरल फोल्ड को। ठीक है, साथ ही ये परफॉर्मेंस को भी एनहांस कर देता है, एक जो साउंड है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जब हमने इनकी तारीफ कर ली है तो थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एआईपी मॉड्यूल का डिसएडवांटेज क्या होता है, इंस्टॉलिंग एआईपी को इंस्टॉल करना, देखिए एग्जिस्टिंग एसएसएन क्लास में एआईपी को इंस्टॉल करना इंक्रीज कर देता है लेंथ एंड वेट ऑफ द बोट। अब देखिए, एक बोट अगर उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं की गई है कि वो एक पर्टिकुलर वेट से ज़्यादा ट्रैवल कर पाए, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और जिसकी वजह से कोई भी मैल फंक्शन हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो देखिए, लिथियम बैटरीज क्या होती हैं, एक बेटर एफिशिएंसी तो प्रोवाइड करती हैं, पावर और चार्ज और डिस्चार्ज डायनेमिक्स भी प्रोवाइड करती हैं, बट अनस्टेबल होती हैं और सफ़र कर सकती हैं थर्मल रनवे से। इनके एक्सप्लोजन की वजह से फायर रिस्क के भी बढ़ने के चांसेस यहाँ पर दिख जाते हैं, जिसके बहुत सारे रिजल्ट्स हमें जापान सबमरीन्स में देखने के लिए मिले हैं। सो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा कि एआईपी टेक्नोलॉजी को इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, और इसी के लिए इस बात पे फोकस किया जा रहा है। चलिए, तो ये तो था आर्टिकल के बारे में। इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन दैट इज लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल एक रीजन है ऑफ द एंडीज विच इज रिच इन लिथियम रिजर्व अराउंड द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइना। This area is thought to hold around 54% of the world lithium reserve, और इसी को बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, सो अगर हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, सो यहाँ पे पड़ता है लिथियम ट्रायंगल। ठीक है,
सो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली ये एरिया बनाता है वर्ल्ड का 54% लिथियम का रिजर्व एरिया। अलॉन्ग विद दैट यू शुड रिमेंबर कि लिथियम आज की डेट में एक नया वाइट गोल्ड बन के उभरा है, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज की डिमांड यहाँ पर राइज होती जा रही है। ठीक है, सो ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोल देते हैं, वाइट गोल्ड की संज्ञा भी दी जाती है। सो अगेन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल, इसको डिनोट किया जाता है Li से। ठीक है, क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी डिटेल जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल होता है, लाइट मेटल होता है, लाइट एज सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल भी होता है। ठीक है, इट इज़ एन एल्कलाइन मेटल एंड अ रेयर मेटल ऑल्सो, क्योंकि ये इंक्लूड करता है निबोयम, टैंटलम, लिथियम, बेरिलियम एटसेट्रा को। ठीक है, सो इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी जिनका नाम है खानजी बायदेश इंडिया लिमिटेड, या जिसे हम काबिल भी बोलते हैं, इसको सेटअप किया गया है टू पार्टिसिपेशन विद द 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, क्योंकि ये इंश्योर करेगा टू सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे, ये काबिल प्रोजेक्ट ही है जो यहाँ पर इस ट्रायंगल से जिसका काम है इस क्रिटिकल मिनरल को लाना और डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करना। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। एंड फर्स्ट न्यूज इज द 2023 एडिशन ऑफ इंडियन नेवी मेजर मैरिटाइम एक्सरसाइज थिएटर level operation readiness exercise, which is also termed as TROPEX, is currently underway in the Indian Ocean region. The TROPEX 23 is being conducted over a duration of 3 months from January to March 23 as part of the exercise. All surface combatants of the Indian Navy, including destroyer, frigates, corvettes, as well as the submarines and aircrafts, are put through complex maritime operational deployment to violate and refine the Navy's concept of operation, including operational logistic and interoperability with the other services. Next, Nagaland is celebrating the Orange Festival for 2 days. Nagaland Fruit Festival is being organized in the state to praise the hard work of the orange growers. Next, the government of India is celebrating this year National Tourism Day at Pochampalli of Telangana. So, it's a quiz time, and first question is Prime Minister Sri Narendra Modi to name 21 islands of Andaman and Nicobar after which of the following awardees group? Next, which city is the host of the G20 Working Group on Environment and Climate Sustainability meeting? So you all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. We have entirely dedicated faculty for both the exams. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.